today's class we are going to understand about that what is the meaning of international basal. In the last class we were discussing about the holder and holder due in course. So we are going to complete this topic, and then after that we are going to move toward the international basis. Hello. Oh, yeah. Okay, so let's start with the class. Okay. So in the last class we were discussing about the holder due in course. So who are the negotiable instruments of the negotiable instrument? Who are the holders of the negotiable instrument? कौन होते हैं होल्डर negotiable instrument के? Can anyone tell me that who are the holders of the negotiable instrument? Anyone? Priya, Abhijit, Utsav, Rohit, Abhishek. हाँ. Who are holders? हाँ. The instrument is known as the holder. Okay. बेसिकली द होल्डर वो होंगे जो आपके बेसिकली जिसका नाम होता है आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. इफ विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द होल्डर्स जो भी होंगे आपके प्रॉमिसरी नोट के, बिल ऑफ एक्सचेंज के, चेक के, वो होंगे जिनका नाम आपके पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होगा और जिसका पोजेशन उस इंस्ट्रूमेंट में होगा और जो रिसीव करेगा और रिकवर करेगा अमाउंट जो भी पार्टी के थ्रू उनको मिलेगा. So basically, who are the holders of the negotiable instrument? The holders of the negotiable instrument are those, बोल सकते हैं, are those whose name is mentioned on the negotiable instrument. Like for example, if I'm getting the check, my name Kumari Shilpi is written on the check. It means that I am the holder. I will be the holder of that check. Clear हो गई बात, समझ में आया? That who are the holders of the check, whose name is there in the promissory note, bill of exchange or the negotiable instrument, that person whose possession is possible in the legal form. ठीक है, जिसका legal form में उस particular instrument पे possession होगा, that person are the holder of the negotiable instrument. That person have right to receive, that person have right to recover the amount whatever there is on the negotiable instrument. For example, if I'm getting check of 20,000 rupees, then I am the person who is responsible to get that amount and get that amount into my account or either in cash. Clear हो गई बात, समझ में आया सबको? Who are the holders? The point is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Everyone turn on your camera. Everyone. Okay. Chaliye, a person is called the holder of the negotiable instrument when these conditions are satisfied. कब जब condition satisfied होगा तो हम किसी भी person को कहेंगे that this person is the holder of the negotiable instrument. ठीक है? So the first thing is he must be entitled to possession of the instrument in his own name and under a legal title. अगर वो person जो है उसका possession का right है क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है, तो in that situation that person can be the holder of the particular negotiable instrument. ठीक है? Next one is Utkarsh. Please be careful in the classroom. Don't unmute yourself either if you have to ask any question. Okay. आगे चलते हैं. Actual possession जो है instrument का is not essential. The holder must have legal right to possess the instrument in his own name. ठीक है, इसका मतलब है कि जो instrument होना चाहिए उसका नाम टाइटल जो है वो lawfully लिखा होना चाहिए. Example में if my name is Kumari Shilpi and if someone will write Shilpi in that, it means that that name is not according to the lawful. Why it is not lawful? Because my name is not properly written on the negotiable instrument. If the name is half written or there is an incomplete name, then in that situation it is not lawful. So the name should be the proper and the title जो भी है वो lawfully आप उसमें use किया जा सकता है. ठीक है? Example में if a person, example में देखिए, it means मतलब example में एक person जो है जो acquire कर रहा है कोई भी चेक को, ठीक है, किसी भी चेक को acquire कर रहा है और कैसे acquire कर रहा है, that is acquired by theft, fraud or forged endorsement.
फॉर्ज इंडोर्समेंट का होता है जाली दस्तखत करके जब हम किसी को इंडोर्स कर देते हैं, क्या चीज, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर एक्वायर करता है चेक या बिल किस तरीके से, थेफ्ट के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या फॉर्ज इंडोर्समेंट के थ्रू, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो नाम होगा दैट इज नॉट अ लीगल टाइटल। ठीक है, इट इज नॉट एक्वायर्ड इन हिज ओन नेम लीगल टाइटल there to, and hence he cannot call its holder. So I guess this point is clear to all of you, this condition is clear to all of you, that what is the situation of the holder. Abhijit, clear हो गया बेटा, समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि आपका जो नाम होना चाहिए वो आपका पोजीशन के लिए भी, जैसे मान लीजिए मेरे नाम के पे चेक बना है तो मेरा पोजीशन का राइट है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं उसकी लीगल होल्डर बन जाऊंगी। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, उसने किसी और का चेक ले लिया, ठीक है, थेफ्ट मतलब चोरी कर लिया, फ्रॉड किया, नाम चेंज करने की कोशिश की, या फिर जाली दस्तखत की तरह के से कोई भी आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या करने की कोशिश की, यूज करने की कोशिश की, तो ऐसे सिचुएशन में जो टाइटल होगा आपके पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो टाइटल क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर और लॉफुल नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन किसी और को मिलना था, नाम किसी और का था, और ये गलत इलीगल तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज हुई है, तो ऐसे पर्सन को हम होल्डर नहीं कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। चलिए, next point is he must be entitled to receive or recover the amount from the parties concerned in his own name. अब एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, A है एंड B है, there are two person. अब A जो है वो क्रेडिटर है और B जो है वो डेटर है। I guess you all are from BCom, तो I guess डेटर और क्रेडिटर is clear to all of you, right? So A is creditor and B is debtor. ठीक है, there are two person, debtor and creditor. Creditor and debtor. A is creditor, B is debtor. Who is going to pay to whom? A is creditor, B is debtor. A is to be. A is debtor and B is creditor. Sorry, A is a creditor and B is debtor. मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। लिखिए, तो A जो है, A is creditor and B is debtor. So who is going to pay to whom? A is creditor, B is debtor. अब बताइए, who is going to pay to whom? अभिजीत, रोहित, other students, Rajvi, Rajat. Ma'am, B is going to pay A. B is going to pay A, right? So here B is going to pay A, so maybe B is going to make the check, right? तब चेक जो ये बना रहा है वो किसके नाम पे बना रहा है? A के नाम पे उसने चेक बनाया, ठीक है, A के नाम पे चेक बनाया। अब A जो है, this person is holder and this person is responsible to recover the amount. यही person आपके रिकवर करने के लिए भी लाइबल है। ट्रू? क्लियर हो गई बात? चलिए, so he must be entitled to receive or recover the amount from the parties concerned in his own name. मतलब A का नाम है तो A जो है लाइबल है कि ये रिकवर करा लेगा अपने पैसे को। For this purpose, it is essential that the name of the holder appears on the document as its payee or endorsee. और इस चीज के लिए अगर आप A को पे कर रहे हो पैसा, तो A का नाम उस चेक में मेंशन होना चाहिए। For example, this is a check, the name of A is mentioned here. Or either if it is a bill of exchange or the promissory note, if it is endorsed, तो नेम ऑफ द इंडोर्सी यानी जिसको पैसा मिलेगा, और अगर यहाँ ए को पैसा मिल रहा है तो ए का नाम इंडोर्सी के जगह पे होना चाहिए, ठीक है। सो ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज हु इज कंसर्न्ड इन हिज ओन नेम, राइट। द नेक्स्ट वन इज फॉर दिस पर्पस इट इज एसेंशियल, क्या जरूरी है, that the name of the holder appears on the document as a payee or endorsee. जिसको पेमेंट मिलेगा उसका नाम, endorsee का नाम आपका मेंशन होना चाहिए।
इफ इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अगर इन केस अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है, देखो तुम लोगों को पता होगा ना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है। द बियर इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि द नेम इज नॉट मेंशन बट द हुएवर इज गोइंग टू होल्ड दैट इंस्ट्रूमेंट, द पेमेंट विल बी गिवन टू दैट पर्सन ओनली, राइट? So that is the situation of the bearer. But if we are talking about the order, the name of the person in order to वाला condition लग जाएगा। तो जब बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ बियरर कोई भी होगा, दैट पर्सन मे क्लेम द मनी विदाउट हैविंग हिज नेम मेंशन्ड ऑन द चेक। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो भी बियरर हो जाएगा वो आपका पैसा रिकवर कर लेगा। सो द होल्डर इज कॉम्पिटेंट टू रिसीव payment or recover the amount by filing a suit in his own name against the other parties to negotiate instrument and to give a valid discharge. So it might be possible that if there is a bearer instrument, the theft, the illegal things can be happen with the payee or endorsee. So in that situation he have a right to sue the person जिससे पार्टी से उनको पैसा लेना था। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि instead of providing the bearer instrument, either you can provide the order to instrument or the account payee in the situation of the check. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया, बियरर चेक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने यूज कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो पैसा है वो किसी के भी अकाउंट में जा सकता है, क्योंकि बियरर का मतलब ही वही है कि जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा पैसा उसी को मिलेगा। तो आई गेस दिस कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस कंडीशंस आर क्लियर? यस मैम। ओके ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। आई एम स्टॉप शेयरिंग। तो ये 2 दिन की छुट्टी हो गई, चलिए हॉलीडेज बहुत हो गया, चलिए। सो इन द केस, अब एक और सिचुएशन है, सुनिए, होल्डर की बात हम कर रहे हैं तो सिचुएशन सुनिए। इन केस अ बिल, नोट और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, अगर मान लीजिए किसी केस में बिल या प्रोमिसरी नोट या चेक कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय का मतलब ही नहीं पता है क्या तुम लोगों को? बोलो। मैम तबाह कर देना। एग्जैक्टली, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, खराब हो जाना, गुम हो जाना, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज फट गया, टू खराब हो गया, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या गुम हो गया, लॉस हो गया, तो इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये होल्डर है, अगर कोई केस हुआ, बिल, नोट या चेक जो है वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. in other word, अगर कोई पर्सन जो है वो entitled है रिसीव करने का पेमेंट का, और at the time of instrument was lost will continue to regard it as its holder and the finder does not become its holder. यानी कि अगर आपका चेक गुम हो गया, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है कि चेक तो आपसे गुम हो गया और आपको पैसा रिकवर करना था। जब चेक आपसे गुम हुआ है और किसी और को मिल गया, मान लीजिए ए का चेक था, बी को मिल गया, तो बी भी उसका होल्डर कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं बनेगा, याद रखिएगा। इन द केस इफ योर बिल, इन द केस इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्ट्रॉयड, या खराब हो जाए, फट जाए, म्यूटिलेट हो जाए, कुछ भी हो जाए या लॉस्ट हो जाए, तब भी होल्डर कैन नॉट बी चेंज। इफ इन द केस ए लॉस्ट इट्स चेक and B found it, it doesn't mean that the holder B will become holder. No, only A will be the holder of that check. Clear हो गई बात, समझ में आया? That is written under the section 8 of the Negotiable Instrument Act. I guess this point is clear to all of you. Holder का पूरा point clear हो गया? The point is clear? Yes ma'am. Okay, what about Abhijit, Rajvi, Yes, ma'am. Clear. Utkarsh, Priya? Yes, ma'am. So do you Yes. think that I am going to take the name of each and every individual student in the classroom? चलिए,
होल्डर ड्यू इन कोर्स का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट. दैट इज रिटन अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सो होल्डर इज रिटन इन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 में होल्डर ड्यू इन कोर्स, राइट? होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन. अच्छा, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक पार्टी दूसरा पार्टी से एक दूसरे को पैसा एक्सचेंज होगा, कंसिडर करे, दूसरे को माने, ठीक है. फॉर कंसिडरेशन become the possessor of the promissory note, bill of exchange or check if payable to the bearer or the payee or endorsee thereof, if the payable to order before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe defect existed in the title of person from whom he is derived his title. So what is the meaning of the holder in due course? होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई भी पर्सन हो सकता है किसी कंसिडरेशन से, यानी किसी के मानने पे, किसी को बताने पे वो पॉजेसर बन सकता है प्रॉमिसरी नोट का. एग्जाम्पल में अगर ए जो है वो होल्डर है तो वो चाहे तो बी को दे सकता है क्या? अपना प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर अपना चेक, ठीक है, फॉर द पोजेशन, कुछ टाइम के लिए. द पोजेसर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इफ पेबल टू बियरर, ठीक है. अगर मान लीजिए उस चेक में नाम मेंशन नहीं है, जैसे मान लीजिए ए का चेक था, ए का नाम मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या बन गया? बियरर बन गया कि नहीं? बियरर है. तो इफ पेबल टू बियरर, अगर बियरर फॉर्म में है, बियरर चेक है, तो उस सिचुएशन में दैट कैन बी पॉसिबल. और द पे और एंडोर्सी देयरऑफ इट पेबल टू ऑर्डर बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकम पेबल. और यहाँ पर सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, जैसे कोई डिफेक्ट है, अगर कुछ भी ऐसा रीजन है टाइटल में पर्सन का जिसके नाम को डिराइव किया गया है, तो जो पर्सन ड्यू इन कोर्स होगा वो क्या होना चाहिए? पर्सन बिकम्स अ होल्डर ड्यू इन कोर्स ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग कंडीशन. अब ये कब कब कोई पर्सन जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है? व्हाट आर द वेरियस कंडीशन? तो पहला चीज कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स. पर्सन जो है वो उसको पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप. क्या होता है पोजीशन का मतलब? पोजीशन का मतलब किसी चीज का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स के सिचुएशन में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स पर्सन होगा उसके पोजीशन में होगा. इन द केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही मस्ट बी इट्स पेई और इंडोर्सी. अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो उसको पक्का इंडोर्स किया गया होगा, पेई को या फिर जो इंडोर्सी है उसको इंडोर्स किया होगा. हिज नेम मस्ट बी अपीयर ऑन द इंस्ट्रूमेंट. एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको समझाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे ये होगा. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दो पार्टी थी, ए और बी, ठीक है. अब जो ए है उसको पेमेंट करना है बी को, तो भाई बी ने इसको चेक दिया, ठीक है. और कौन सा चेक दिया? बियरर चेक दिया. अब बी ने जो है इसको सी को ट्रांसफर किया और इसको इंडोर्स कर दिया. इंडोर्स कर दिया ना, तो यानी इसका नाम जो है सी का साइन कर दिया और इंडोर्सी का नाम यहाँ मेंशन कर दिया. तो ऐसे सिचुएशन में दिस सी इज नोन एज होल्डर ड्यू इन कोर्स. यानी कि आपने क्या किया? आपने बियरर चेक किसी से लिया और उसके बाद उसको इंडोर्स कर दिया, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका पोजीशन सी को ट्रांसफर हो गया. और यहाँ पर वो आपका बियरर भी हो सकता है या फिर आप उसके इंस्ट्रूमेंट में सी का नाम जरूर लिखेंगे, तो नेम विल बी बेसिकली रिटन हियर सी. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए दैट मस्ट बी रेगुलर एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. अगर आप कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला सिचुएशन है, कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उस सिचुएशन में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी क्लियर. वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव. एनी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन जो होगा, इफ एनी मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द ड्रॉई. अगर कोई आप अल्ट्रेशन करना भी चाह रहे हो तो जो ड्रॉई है जिसने चेक बना के दिया है, जैसे एग्जांपल में ए ने बी को चेक दिया, तो अब ये ड्रॉई का काम है कि बी जो है अगर कोई अल्ट्रेशन कर रहा है तो वो ड्रॉई से इस बारे में बताएगा, ठीक है. ये कंफर्म विद ड्रॉई, सॉरी हियर ए विल कंफर्म विद बी. मतलब जो ड्रॉर है ए जो है वो बी को दे रहा है ना,
तो बी से कंफर्म करेगा। कोई भी अल्टरेशन अगर है तो मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द ड्रॉई थ्रू इट्स सिग्नेचर, यानी ड्रॉई ने इस तरीके के चेंजेस के बारे में बताया है, दैट शुड बी मेंशन। होल्डर ऑफ एन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये कभी मत सोचना कि जो पर्सन को डॉक्यूमेंट आधा अधूरा मिल गया वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो पर्सन होगा दैट पर्सन विल गेट होल डॉक्यूमेंट इन द प्रॉपर फॉर्म। होल्डर ऑफ एन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट है मस्ट हैव बीन प्रॉपरली डिलीवर्ड टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो होगा दैट मस्ट हैव बीन प्रॉपरली डिलीवर्ड। जो इंस्ट्रूमेंट है वो पक्का जो है मस्ट हैव बीन प्रॉपरली डिलीवर्ड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसे होल्डर को आपके प्रॉपरली डिलीवर होता है वैसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्रॉपरली डिलीवर होगा। अगर कोई केस है, द केस ऑफ द ऑर्डर चेक एंडोर्समेंट इन द फेवर ऑफ होल्डर इज एसेंशियल। अगर कोई ऑर्डर चेक है, क्योंकि अगर ऑर्डर चेक है तो उसमें ए ने बी का नाम लिख दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में बी अगर किसी को इंडोर्स कर रहा है तो इसके बारे में उसको नाम इंडोर्सी का लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक इज नॉट डीम्ड टू बी इरेगुलर। यहाँ पर आपका जो पोस्ट डेटेड चेक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक? In future. What is the meaning of post dated check? In future. In to फ्यूचर में कोई भी चेक को क्या बोलते हैं उसे, विड्रॉ करना, पैसा निकालना। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है जो चेक हमने आगे की डेट के लिए बनाया हो। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मुझे आज अगर चेक मिल रहा है तो आज का डेट क्या है, टुडे इज 7 फरवरी। एग्जाम्पल समझ में आया? 7 फेब लिखा है, तो अब यहाँ इस डेट से वो 3 महीने के लिए वैलिड है। क्लियर है? 3 मंथ के लिए वैलिड है। अगर मान लीजिए कि आज 7th है और मैंने यहाँ चेक जो काटा है दैट इज फॉर 10th मार्च 10/3/22, तो यहाँ पर ये इस तारीख से 3 महीने के लिए वैलिड होगा। तो इस चेक को हम कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट डेटेड चेक, यानी वैसा चेक जिसका हमने डेट आगे के पीरियड के हिसाब से सेट किया है। यानी आगे 3 महीने बाद का हमने डेट अगर चेक में डाल दिया तो उस 3 महीने के बाद से उस चेक की वैलिडिटी अदर 3 मंथ के लिए हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस मैम। तो Yes, ma'am. अभिजीत क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। रजत, रोहित, प्रिया सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका पोस्ट डेटेड चेक है वो इरेगुलर चेक में डीम्ड नहीं कहलाएगा। मतलब पोस्ट डेटेड चेक इज ऑल्सो पॉसिबल टू बी एंडोर्स, ठीक है, इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय पेइंग इट्स फुल वैल्यू, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट जो आप ऑब्टेन करेंगे दैट विल बी द वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय पेइंग इट्स फुल। अ पर्सन हु रिसीव अ चेक एज अ गिफ्ट विल नॉट बी कॉल्ड इट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर वांट ऑफ द कंसिडरेशन। याद रखिएगा, जो भी पर्सन को चेक मिल रहा है एज अ गिफ्ट चेक, गिफ्ट सुना है ना, गिफ्ट चेक कहते हैं, गिफ्ट चेक सुना है। गिफ्ट चेक क्या होता है? गिफ्ट चेक का मतलब होता है जब आप कोई किसी को चेक जो है गिफ्ट में दे रहे हैं, जैसे 5000 का चेक आपने दिया और दैट इज अ गिफ्ट चेक, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन है हु रिसीव अ चेक एज अ गिफ्ट विल नॉट बी कॉल्ड इट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। उस पर्सन को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स में नहीं लेंगे फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपरली लीगल होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, इफ अ चेक इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेब्ट incurred in the gambling, the consideration for the check is unlawful. consideration यहाँ चेक का क्या हो गया? गैम्बलिंग में एक देखिए, एक पर्सन है जिसने, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? लॉटरी। लॉटरी, जुआ खेलना कह सकते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कोई चेक है, इफ अ चेक जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि गैम्बलिंग में पैसा जो है सर पे बहुत आ गया, भाई 1 लाख रुपए हार गए, 1 लाख रुपए पे करना है, गैम्बलिंग में का पैसा अमाउंट पे करना है। अब ऐसे सिचुएशन में आपने चेक ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे जो चेक होते हैं
If a check is given in respect of debt incurred in the gambling, the consideration for the check is unlawful. Consideration का मतलब क्या है? इसका जो intention था वो क्या हो जाएगा? गलत होगा कि सही होगा? Unlawful हो जाएगा. ठीक है? If the value of the consideration falls short of the amount of instrument, the person will deemed as a holder in due course to extend to value of the consideration. तो यहाँ पर अगर value आपकी consideration का, ठीक है, अगर वो कम हो जाएगा अमाउंट से, इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट से, तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्सन है, दैट पर्सन विल बी नोन एज डीम्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बिफोर अमाउंट मेंशन्ड देयरिन बिकम्स पेएबल. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होगा, इट इज एप्लीकेबल टू डॉक्यूमेंट पेएबल, अदरवाइज देन द on the demand does not apply to check which is always payable on demand. तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट जो होगा have been obtained before the amount mentioned, मतलब जो भी अमाउंट आपने मेंशन किया है उससे पहले इंस्ट्रूमेंट जो है वो obtained होना चाहिए, therein तभी जाकर ये पेएबल होगा. तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए. ठीक है. और होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर. तो यहाँ जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, पर्सन जो होगा वो ऑब्टेन करेगा इंस्ट्रूमेंट को बिना ये सोचे कि उस सफिशिएंट कॉज क्या है और कोई भी डिफेक्ट है ट्रांसफरर के नाम में. ठीक है. तो दिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट टू कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. अगर टाइटल जो पर्सन का जो निगोशिएबल हो रहा है, इफ द टाइटल of a person to negotiable instrument is deemed to be defective, अगर कोई डिफेक्टिव है या अनफेयर मींस के थ्रू एक्वायर कर रहा है, बाय फ्रॉड के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, इलीगल मेथड के थ्रू, इलीगल कंसिडरेशन के थ्रू, तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉजेस हो रहा है टाइटल, that title will be known as defective. ठीक है. वो क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव टाइटल हो जाएगा. तो ये सारे कंडीशन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए है. अब द राइट्स ऑफ द होल्डर, मैं फिर से एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स बताऊंगी. राइट्स ऑफ होल्डर का मतलब क्या है कि एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मे बी कन्वर्टेड बाय हिम इनटू अ एंडोर्समेंट इन फुल. यानी कि अगर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, अच्छा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या है? ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या है? रेज योर हैंड. ब्लैंक एंडोर्समेंट, what is the meaning of blank endorsement? Yes, Priya. Ma'am, the endorsee endorse the instrument only signing their name, not specify the endorsed person. Very name good. of the endorsed person. हाँ. तो यहाँ पर जो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक में है कि अगर होल्डर चाहे तो अपने उस इंडोर्समेंट, अपने उस पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर वो ब्लैंक इंडोर्समेंट है, यानी किसी पर्सन ने सिर्फ साइन करके उसको दे दिया, जैसे चेक जो होता है उसमें सिर्फ साइन करके आपको पर्टिकुलर ए ने बी को दे दिया. ठीक है. अब बी जो है अगर चाहे, अब वो तो बियरर चेक में पॉसिबल ही है बस, और अगर इंडोर्समेंट ब्लैंक हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल इंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग द नेम ऑफ द इंडोर्सी. अगर आप किसी को भी इंडोर्स करो उसका नाम लिखिए और साइन कर दीजिए, और ब्लैंक जो आपका इंडोर्समेंट है उसको फुल इंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस इज द राइट ऑफ द होल्डर, द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन है, he is entitled across a check either generally or specially and also with the words not negotiable. अगर होल्डर चाहे तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को नॉन निगोशिएबल में भी कन्वर्ट कर सकता है. नॉन निगोशिएबल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? आपका वो अब आगे चल के निगोशिएट नहीं होगा. और इसके लिए व्हाट कैन बी द पॉसिबल थिंग? दैट द पॉसिबल थिंग क्या होगा? यहाँ पर जो क्रॉस चेक, उसको क्रॉस चेक में आप कन्वर्ट कर सकते हो. देखो यहाँ पर एक क्रॉस चेक तो पता ही होगा, क्रॉस चेक में क्या सिचुएशन होता है. आपका ये जो चेक है यहाँ पर हम कॉर्नर पे क्रॉस करते हैं, ये जो दो क्रॉस है दैट इज शोइंग दैट द पेमेंट विल बी डन इन द अकाउंट. ठीक है. तो दिस इज अ जनरल क्रॉसिंग. इफ देयर इज अ क्रॉसिंग in like this and the word is written here account pay, it means अगर account pay लिखा है, so the name whatever is written in the check, that amount is going to transfer to that person only. Yani if the name of A is written, the amount, this amount means 20k, जो पैसा है वो A के नाम के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा. So this is known as spatial crossing and this one is known as general crossing, right? So he is entitled to cross a check either generally or spatially and also with the word not negotiable.
दैट नॉट निगोशिएबल वर्ड को भी आप जो है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में लिख सकते हैं। जब नॉट निगोशिएबल लिख दिया यानी कि आप ये जो पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्रांसफर नहीं होगा। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज ये राइट्स ऑफ अ होल्डर बता रही हूँ। फिर से एक बार होल्डर ड्यू इन कोर्स करा दूंगी, लेकिन राइट्स ऑफ होल्डर और होल्डर कौन है ये तो एकदम प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है ना? क्लियर है? चलिए, he is in next one, he cannot negotiate a check to a third person if the such negotiation is not prohibited by the direction given in the check। ठीक है, अगर होल्डर चाहे तब भी ही कैनॉट निगोशिएट अ चेक टू थर्ड पर्सन, किसी भी थर्ड पर्सन को वो चेक निगोशिएट नहीं कर सकता अगर कोई भी निगोशिएशन प्रोहिबिट कर दिया जाएगा चेक के में गिवन डायरेक्शन में। यानी चेक में ही अगर ड्रॉअर ये मेंशन करके भेज देगा कि कोई भी निगोशिएशन दिस इज नॉट पॉसिबल टू द थर्ड पार्टी बीइंग अ इंडोर्स, बीइंग अ ड्रॉई और पेई, you cannot able to negotiate it to the third party। तो मतलब ये चेक जो है negotiate third, he cannot negotiate a check to a third party, he can negotiate a check to a third party if such negotiation is not prohibited by the direction। हाँ, अगर वो थर्ड पार्टी को negotiate कर सकता है, लेकिन अगर वो चीज मेंशन नहीं हुआ, मेंशन होगा तो नहीं कर पाएगा। इसका वाइस वर्सा सिचुएशन समझो, if there is nothing mentioned related with the negotiation then he is able to negotiate or transfer it to the third party। but if there is any kind of negotiation written कि ऐसा negotiation नहीं किया जा सकता, prohibited मतलब रोकना, prohibit होगा, रुका होगा, रोका गया होगा, तो ऐसे situation में you cannot negotiate। I guess this point is also clear to all of you। Clear? Okay, he can claim payment of instrument and can sue in his own name on the instrument। अगर वो पेमेंट चाहता है इंस्ट्रूमेंट का और अगर वो चाहे तो वो पेमेंट को क्लेम भी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट में। और इन द केस ऑफ द नॉन रीपेमेंट, अगर कोई भी सिचुएशन हुआ जहां नॉन रीपेमेंट हो गया तो दैट कैन बी सू इन हिज ओन नेम, मतलब वो चाहे तो वो सू कर सकता है अपने नाम को यूज करते हुए, किसको? बेसिकली ड्रॉअर को। ठीक है, तो दैट कैन पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ लॉस्ट चेक मे बी ऑब्टेन्ड बाय अ होल्डर। अगर मान लीजिए कि अगर मेरा चेक गुम हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में इफ आई एम द होल्डर आई एम एबल टू गेट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लॉस्ट चेक। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस राइट्स ऑफ द होल्डर्स। द फर्स्ट वन इज endorsement in blank can be changed into the endorsement in full। Next one is he is entitled to a cross a check either generally or specially and also with the words not negotiable लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए he cannot negotiate a check to a third person, मतलब वो थर्ड पर्सन को निगोशिएट कर सकता है अगर निगोशिएशन प्रोहिबिशन नहीं होगा, लेकिन अगर निगोशिएशन प्रोहिबिटेड होगा इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। द नेक्स्ट वन इज ही कैन क्लेम द पेमेंट, वो पेमेंट को क्लेम कर सकता है, नॉन रीपेमेंट में सू भी कर सकता है ड्रॉअर को। ठीक है, और डुप्लीकेट जो चेक होगा, लॉस्ट चेक होगा, उसका आपको इजिली ऑब्टेन हो सकता है, किसको ऑब्टेन होगा? होल्डर को। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस अभिजीत? मैम सेकंड पॉइंट रिपीट करिएगा। He is entitled to cross a check, he is entitled to cross a check either generally और specially। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं भी इसका एग्जाम्पल दूंगी, पहले लिख लो। He is entitled to cross a check either generally or specially and also with the words not negotiable and also with the words not negotiable। ठीक है, तो अगर जो होल्डर है, जैसे मान लो मुझे चेक मिला, आई एम द होल्डर, आई कैन डू द थिंग्स, आई कैन यूज द स्पेशल, बोल सकते हैं स्पेशल क्रॉसिंग या जनरल क्रॉसिंग आई कैन डू एंड आई डिड। Even I can give the example of this that I did. Once I got a check of the payment, then in that situation there is only what happened, that was a general crossing was there। So in the case of the general crossing, if there is a general crossing, that amount can be transferred in any of the person, यानी किसी के भी अकाउंट में अगर ए चाहे तो पैसा को ट्रांसफर करा सकता है।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्पेशल क्रॉसिंग कर लिया और मैंने यहाँ लिख लिया अकाउंट पे। अब ये जब भी चेक क्लियर होगा वो मेरे ही अकाउंट में जाके चेक क्लियर होगा। सो द होल्डर हैव राइट टू ड्रॉ दिस स्पेशल क्रॉसिंग एंड जनरल क्रॉसिंग इफ दे वांट, राइट? सो आई गेस this point, this rights of the holders are clear to all of you. Yes, ma'am. Clear? Okay. Yes, ma'am. Let's start with the differences between the holder and holder due in course. What are the various differences? Let's start to understand this point. Okay. Okay. So holder and holder due in course में difference मैंने बता दिया था आप लोगों को कि क्या difference है. Holders rights and powers, so I guess this point is also clear to all of you. Holders rights power तो clear है? Yes, ma'am. Okay. Okay, so section 9 is saying something about the holder and holder due in course के बारे में. सेक्शन 9 जो है वो कुछ कह रहा है कि गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू का मतलब यहाँ क्या है, ठीक है? सो द फ्रेज इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू यहाँ पर जो है दैट इज स्प्लिटेड इनटू द 4 सेक्टर. फर्स्ट वन इज जो इंस्ट्रूमेंट टेकन बाय द होल्डर इज शुड बी फॉर वैल्यू, यानी वैल्यू के लिए जो पर्सन है वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा. सेकेंड है इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी एग्जाम्पल के लिए if there is a bill of exchange and the maturity date is 2 years, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल के बाद you are providing या फिर the holder in due course they are taking that instrument. No, जो भी आपके person होंगे, जो भी holder in due course होगा, that person will get the right of that particular वो राइट जो मिलेगा, किसको राइट मिलेगा? जो भी पर्सन को राइट मिलेगा दैट शुड बी बिफोर मैच्योरिटी डेट. मैच्योरिटी डेट से वो पहले होना चाहिए. सेकंड है, थर्ड है कि द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन इट्स फेस, मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो रेगुलर और प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट है जो इंस्ट्रूमेंट होगा शुड हैव बीन रिसीव्ड इन द गुड फेथ विदाउट नोटिसिंग एनी डिफेक्ट और एरर, यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो रिसीव होगा गुड फेथ से. गुड फेथ का मतलब क्या होता है? व्हाट विल बी गुड फेथ? मैम एक दूसरे का भलाई चाहना. हाँ, भरोसा, भलाई, ठीक है, एक भले के लिए, भरोसे से, ठीक है? विदाउट नोटिसिंग, कोई भी डिफेक्ट को बिना नोटिस किए हुए, एरर को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट में कोई टाइटल नॉट इन द पर्सन नेगोशिएटिंग टू हिम, ये सब चीज को हटाते हुए जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट शुड बी रिसीव्ड इन द गुड फेथ विदाउट नोटिसिंग एनी डिफेक्ट और एरर नीदर इन द इंस्ट्रूमेंट टाइटल नॉर इन द पर्सन नेगोशिएटिंग टू हिम, यानी जो भी उनको निगोशिएट करे उन सब चीजों को कुछ नहीं आप देखिएगा कि वो पर्सन कौन है. आप एक गुड फेथ को, एक भले को समझते हुए, एक भरोसे को लेते हुए यू आर गोइंग टू टेक दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? यहाँ पर अच्छा चलिए अब डिफरेंसेस को देख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दैट? What is the differences between the holder and holder due in course? ठीक है, चलिए यहाँ पर ही बुक में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर एक केस भी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्या है. डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर ड्यू इन कोर्स. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. चलिए, ओके okay, so the first point is consideration. What is the meaning of consideration here? Difference between holder and holder due in course में जो मैं आपको differences बता रही हूँ वो सुनिएगा ध्यान से. The first point on the basis of that we are going to differentiate both point, that is consideration. The existence of consideration is not essential in the case of the holder. होल्डर के केस में कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपकी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है आफ्टर ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर पेइंग इट्स वैल्यू फुल, यानी कि आपकी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है होल्डर्स इन ड्यू कोर्स में, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन होल्डर्स. एग्जाम्पल में
अगर कोई चेक जो है वो इश्यू हो रहा है गिफ्ट या डोनेशन देने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को, द ट्रस्ट डज नॉट बिकम इट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा. ऑन द अदर हैंड, द ट्यूशन फीस पेड टू द स्कूल और कॉलेजेस इज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. ठीक है, hence the school or college acquires the status of holder due in course. यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए क्योंकि कोई चेक है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या डोनेशन दे रहे हैं, हम किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर उसका कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन है? नो मैम. लेकिन अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें जो कि हमें देना है, राइट, if we have to give the tuition fees to the school, the consideration is there or not? Yes, ma'am. Definitely, because that is the amount we have to pay, right? So जो school और college होगा, that they will get the status of holder in due course, because we are in that situation where we have to pay the amount to the school or colleges because we are taking the services, right? Clear हो गई बात? But in the case of the charitable institute, charitable trust or the donation, here we are not liable to pay to the charitable institution, but we are paying it as a gift, right? So the charitable institution can become the holder, but the holder due in course का status उसको नहीं मिलेगा क्योंकि no money is due to that person. But in the situation when there is a school or colleges where we are taking the services, education हम वहां से ले रहे हैं, so that college or institution will get the status of holder in due course. Clear हो गई बात? Point is clear? Yes, ma'am. Okay, next one is possession. The person entitled to holder in due course must become the possessor of instrument before it's become payable. यानी कि possession का मतलब होता है the ownership which is given to the person. ठीक है, तो जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो पक्का क्या हो जाएगा? पोजेसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, जब तक कि बिफोर इट्स बिकम पेएबल, जब तक वो पेमेंट नहीं होता है तब तक वो पर्सन उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा. एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी के लिए ट्यूशन फी देना है 5,000 रुपीज एंड आई डिडंट पेड इट टिल 10th of February, so in that situation that person whom I need to pay the amount, that person become होल्डर इन ड्यू कोर्स. जब तक उसका पेमेंट नहीं होगा तब तक वो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ही रहेगा. जैसे मैंने उसका चेक दे दिया और उसका पैसा क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो दैट पर्सन विल बी होल्डर इन ड्यू कोर्स टिल दैट अमाउंट इज नॉट पेएबल. वंस द अमाउंट इज पेएबल, द स्टेटस विल बी नॉट बेसिकली द सेम. होल्डर इन ड्यू कोर्स का स्टेटस खत्म हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यस मैम. ओके, now the next इसमें example है. If a bill of exchange is payable on March 20, 2010, a person who possesses it before the date is entitled to be holder in due course. जो भी पर्सन इसके पहले इसका जो पोजीशन होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा. अगर जो डेट है, if it is obtained after this date, the possessor will not call its holder in due course. कुछ समझ में आया ये पॉइंट? ड्यू का मतलब क्या होता है? कोई चीज बाकी रहना होता है ना, होता है ये चीज. अच्छा, इसको मैं समझाती हूँ एक बार फिर. जैसे तुम लोग को मैं एक बात बताती हूँ. जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहीं से सामान खरीदा, मान लीजिए राजवी गई मार्केट और उसने कहीं से 500 का सामान परचेज कर लिया. अब राजवी ने पेमेंट नहीं किया तो राजवी का पैसा ड्यू रह गया उस स्टोर पे, और वो जब तक ड्यू रहेगा जब तक कि राजवी उसको पेमेंट करती नहीं है. ट्रू? वंस द पेमेंट विल बी डन, देन वो जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा ड्यू वाला. ठीक है, यहाँ पर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लिया गया है, इसको समझिएगा कि एक बिल था जिसको मार्च 2010 में पेमेंट करना था. ठीक है, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज को पेबल जो था वो 20/2010 को था, जो पर्सन जो उसको पॉजेस कर रहा था, इट बिफोर दिस डेट इज एंटाइटल्ड टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स. यानी जो पर्सन को इसको लेना है, ठीक है, बिल को लेना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस बिल को लेना था, तो मैं क्या हुई? मैं हुई होल्डर ड्यू इन कोर्स हो गई. ठीक है,
लेकिन जब तक वो पेबल नहीं है, मतलब 2010 तक में पेबल करना था 10 मार्च को, 20 मार्च 2010 को, उसके बाद जो पोजेसर जो है, जो पर्सन है, जो पोजेसर है, उसको अगर आफ्टर दिस डेट मिला, यानी कि मुझे मिला मान लीजिए 30 मार्च 2010 को, तो आई विल नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकॉज दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलरेडी मैच्योर्ड। ठीक है, मैच्योरिटी हो गया, खत्म। तो यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में मैं नहीं आऊंगी। इन केस होल्डर नीदर एक्चुअल पोजीशन नॉर एनी टाइम लिमिट विद इन विच इट मस्ट बी एक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है और वो पर्सन को हमें पेमेंट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ही आएगा। I guess this point is clear to all of you. Clear हो गया? Yes, Yes, ma'am. Okay. So holder in due course का मतलब यहाँ क्या हुआ, इसको मैं एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। एक पॉइंट इसमें जो है वो बाकी है, that is defects in the transferer's title। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि वो पर्सन जो किसी कंसिडरेशन हो, जिसमें कोई भी पोजीशन, जैसे उसको पैसा लेना हो, कंसिडर करता हो, बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी चेक जहां पर पेबल है किसी ब्यूरर को, पेई को इंडोर्स कर सकते हो आप। ठीक है, जब तक वो अमाउंट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन इट बिकम पेबल। यहाँ पर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो पर्सन होगा जो पर्सन को पैसा हमें पे करना है और उस पेमेंट को हमने अभी तक नहीं किया है। Once we are going to give the payment, then that person will be known as holder in due course. But the person whose name is there on the instrument, that person is known as the holder of that. Like जैसे मैंने आपको डोनेशन वाला बताया, ये बहुत सही एग्जाम्पल था। डोनेशन जैसे ही आपने किसी को दिया, ए को आपने, ए चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको डोनेशन दिया, तो ए विल बिकम द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक, बिकॉज हियर द अमाउंट इज नॉट ड्यू बट देयर इज, इट इज लाइक अ गिफ्ट और चेक. But in the holder in due course, that is a responsibility that we have to make the payment. There is a consideration related with that because we are taking the services or we are taking the goods from that particular institute, company, college, school. ठीक है? So जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, that person will be holder in due course. Once we will give the payment, till जब तक उस person के पास चेक है, जब तक clearance नहीं हुआ, that person is holder in due course. So I guess this point is clear. जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 1 तारीख को पेमेंट करना है और हमने 5 तारीख को पेमेंट किया, तो वो पर्सन को हमने 5 तारीख को पेमेंट किया है, तो वो चेक जाके 7 को क्लियर हो रहा है, तो दैट पर्सन विल होल्ड द टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. But if we are giving the payment without any consideration, if consideration is not required, we can give the payment, then that is basically holder. So I guess this point is clear to all of you, right? Yes, ma'am. Clear हो गया? Okay, so there are other differences if you all want to write about it. There are so many differences. Just wait for a minute. अगर मैं okay, so holder and holder in due course में देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखिए. फर्स्ट, होल्डर जो होगा वो पर्सन होगा जो लॉफुली उसको ऑब्टेन मिलेगा आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम होगा और वो उस पेमेंट को लेने के लिए लाइबल होगा, तो दैट पर्सन इज होल्डर. होल्डर इन ड्यू कोर्स में कौन होगा? वो पर्सन होगा जो एक्वायर करेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ इन द केस ऑफ सम कंसिडरेशन हुज पेमेंट इज स्टिल ड्यू. अब तो आई गेस कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है किसी को भी. होल्डर और होल्डर ड्यू इन कोर्स में समझ में आ गया? क्लियर हो गया? प्रिया, रोहित, अभिजीत, Yes, ma'am. उत्कर्ष, उत्सव, रजत, क्लियर? yes, ma'am. ओके, सो वो पर्सन होल्डर और होल्डर में मीनिंग में अगर लिखना चाहते हो तो दोनों का बहुत सिंपल मीनिंग है. लिख लो, फटाफट लिखो मीनिंग दोनों का, लिखो फटाफट, दोनों मीनिंग लिखो दोनों का. उसके बाद फिर ना, ऐसे भी तुम लोग का भी क्लास तो है नहीं इसके बाद, तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं. चलिए लिखते हैं. होल्डर में लिखिए, होल्डर में लिखिए, होल्डर कौन होते हैं? अ होल्डर इज अ पर्सन हु लॉफुली, अ होल्डर इज अ पर्सन हु लॉफुली ऑब्टेन्ड, a holder is a person who lawfully obtained the negotiable instrument. Negotiable instrument, जैसे मान लीजिए उत्कर्ष ने जाकर किसी जगह पे चैरिटी कर दिया 5,000 रुपया, तो that charity or the amount which is gone to the charitable institute, charitable trust, that is basically known as that person who is holding that check, that person is known as the holder. A holder is a person who lawfully obtained the negotiable instrument. लिख लिया सबने? The negotiable instrument has his name. The negotiable instrument has his name.
entitled on it, entitled on it, entitled on it, so he can receive the payment, so he can receive the payment. The negotiable instrument has his name entitled on it, so he can receive the payment, so he can receive the payment from the parties liable, from the parties liable, from the parties liable. I guess this point is clear. What is the meaning of holder? This point is clear, everyone? This point is Yes, clear? ma'am. Okay. Now the next point is holder in due course में meaning लिखिए. A holder in due course is a person. A holder in due course is a person. A holder in due course is a person who acquires the negotiable instrument, who acquires the negotiable instrument, who acquires the negotiable instrument in good faith. In good faith. A holder in due course is a person who acquires the negotiable instrument in good faith for some consideration, whose payment is for some consideration and whose payment is still due, whose payment is still due, right? So what is the meaning of both of this? That in the holder in due course, if there is something in return we have to take, for example, if I am giving tuition, then in that situation, I am giving value and there is a value exchange process. I am giving education, I am teaching. So basically I am providing service, right? And in that situation, if I am providing service, it means that I am giving value. And if I am giving value, I required value in exchange. And what I will get, I'll get the payment, right? So here in holder in due course, there is a value exchange process. Clear हो गई बात, समझ में आया? But in the holder, it is not required that there should be any value exchange, because if we are doing the donation work or if we are paying the amount to any of the person, for example, if I am paying 2,000 rupees check to my brother, it doesn't mean that I want something in return. There is no value exchange in that situation. But yes, if the check is in the check, if my brother's name is written, that then I am liable to pay that amount to my brother, right? Clear हो गई बात, समझ में आ गया? But holder in due course, where there is a payment due and there is a process of value exchange. Clear? तो मीनिंग दोनों का समझ में आ गया सब बच्चे को? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In next class, we are going to complete whole point of the differences. जितने भी points आपके differences के, we are going to complete whole points, as well as we are going to move toward the international Basel. What is that? When it was started, why the agreements are made, and what are the changes made in the Basel 1, Basel 2, what are the various norms, right, related with Basel 1, 2, and 3. We are going to discuss about it. So I guess this point is clear to all of you, right? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay.